Myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. In the last lecture on backtracking, I have discussed about what is backtracking, what is a state space search tree, and what is a n-queen problem. I have discussed about example on 4-queen problem with the help of its state space search tree. In today's lecture, I will discuss about the two other problems, that is graph coloring and Hamiltonian circuit problem. Starting with graph coloring. Now, what is a graph coloring problem? Basically क्या है कि मेरे पास एक ग्राफ गिवन है, मुझे उस ग्राफ की सारी वर्टेक्स को कलर असाइन करना है in such a way that no two adjacent vertex will have same color. अब जैसे हम ये कहते हैं एक ग्राफ है, सारी वर्टेक्स को कलर असाइन करना, नो टू एडजेसेंट वर्टेक्स विल हैव द सेम कलर, वी कैन सिंपली असाइन different color to all the vertex. No, there is a constraint. Now constraint is what? We have to assign minimum number of colors. So what is a graph coloring definition? We are given a graph G and we are asked to color all the vertices with m given colors in such a way that no two adjacent vertices should have the same color. मतलब एक ग्राफ G के सारी वर्टेक्स को कलर असाइन करना है, ये सोचते हुए कि किसी भी एडजेसेंट वर्टेक्स का सेम कलर ना हो और मिनिमम m कलर्स लगने हों. दैट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m रिक्वायर्ड टू कलर द ग्राफ सक्सेसफुली इज नोन एज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ दैट ग्राफ. एग्रीड? मतलब क्या है ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम? हमें ग्राफ की सारी वर्टिसेस को कलर असाइन करने हैं इस तरह से कि एडजेसेंट वर्टिसेस पे सेम कलर ना हो, और वी हैव टू डू इट विद मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स, दैट इज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस ग्राफ, what we have done here is that we have assigned a color green here. Now what are the adjacent vertex to A, that is B and D? So we can't assign green color to B or D. So we have assigned, we go through this path, we have assigned blue to this. After reaching here, what is adjacent to D? D adjacent to C. So what we have given, we can't assign blue color here, so we have given it green. After reaching C adjacency is B. This is green, this is already green, so we assigned it as blue. So a minimum two colors were required for this graph. So basically M coloring problem क्या होती है? हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ में मिनिमम नंबर ऑफ m कलर्स के साथ हमें असाइन करने हैं, किसी भी एडजेसेंट वर्टेक्स पे सेम कलर ना हो, दैट इज m कलरिंग प्रॉब्लम. मिनिमम m colors या at least m colors we have to assign in such a way that no two adjacent vertices will have the same color. Here coloring of graph means assigning colors to the vertices. Now there are two approaches. One is the Naive algorithm and other is the backtracking algorithm. What we do in Naive, in this approach we first find all the permutation of colors possible to color. That is सारे permutations निकाल लेंगे color assign करने के, to color every vertex of a graph using brute force method. Clearly if there are large number of vertices, more time it will take. Agreed? भाई इसमें क्या कह रहे हैं हम सारी permutation of colors possible जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे, और जब मेरे पास लार्ज वर्टिसेस होगी तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज बैकट्रैकिंग एल्गोरिथम? बैकट्रैकिंग एल्गोरिथम मेक्स द प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली बाय अवॉइडिंग सम बैड डिसीजंस इन द नेव अप्रोच. भाई वो सारे परम्यूटेशंस पे काम कर रहा है, लेकिन कुछ डिसीजंस उसमें गुड और बैड भी हो सकते हैं. तो बैकट्रैकिंग क्या करेगा? बैड डिसीजंस को अवॉइड करना. बैड कौन से डिसीजंस? जैसे मैं क्या कह रहा था कि जैसे एन क्वीन में एक क्वीन को यहां प्लेस करने के बाद सेकंड क्वीन को यहां सर्च करना,
या यहां सर्च करना, दीज आर नॉट द पॉसिबिलिटी, दीज आर द बैड डिसीजंस. सो व्हाट आर द गुड डिसीजन? इफ वी प्लेस इट हेयर, हेयर एंड हेयर, दैट इज द 3 पॉसिबिलिटी जिसका हमने स्टेट स्पेस सर्च ट्री भी बनाया था. तो बेसिकली क्या है, in order to avoid bad decisions we will go through the backtracking algorithm. Now what is the step procedure of this? First step, we start by coloring a single vertex and then we move to its adjacent vertex. हम एक वर्टेक्स को कलर देंगे और फिर उसकी एडजेसेंट वर्टेक्स पे हम मूव कर जाएंगे. फिर we color it with that color which has not been used to color any of its connected vertex. अब पहली वर्टेक्स को हमने कलर दिया से रेड, उसकी एडजेसेंट वर्टेक्स पे गए, उसे दिया डिफरेंट कलर. फिर उसकी एडजेसेंट पे आएंगे, फिर ये चेक करेंगे कि अगर मैं इसको पहले वाला ही कलर दे दूं तो क्या हमारे पास सेम एडजेसेंट वर्टेक्स पे सेम कलर रह रहा है, डिफरेंट कलर रह रहा है. और इस प्रोसेस को बार बार हम रिपीट करते रहेंगे. जैसे उसी एग्जाम्पल पे आते हैं जो अभी हमने लिया था, 2 ways. हमने ग्रीन करा पहले को ग्रीन करा या पहले को ब्लू करा, 2 पॉसिबिलिटी हमने यहां पे ली. जैसे ही ग्रीन करा तो अब बी को हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन या ब्लू. ग्रीन नहीं कर सकते क्योंकि एडजेसेंट है. ब्लू कर दिया, ये वाला पाथ आ गया. ब्लू कर दिया सेकंड को तो फिर से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, ग्रीन एंड ब्लू. ब्लू नहीं कर सकते, एडजेसेंट है, कट. फिर हम आ गए इस पाथ पे. सी के एडजेसेंट फिर क्या है, डी. डी एडजेसेंट है तो फिर हम फिर से ग्रीन नहीं कर सकते एडजेसेंट होने की वजह से, और फिर हम आ गए इस पाथ पे. दिस इज वन ऑफ द पाथ, दैट इज ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू. और सिमिलर टू हेयर what we will get is blue green blue green. This is simply assigning colors, that is 2 colors was assigned for which graph? This graph, if we talk about this and this is A, this is B, this is C and this is D. So simply minimum 2 colors was assigned. 2 colors was assigned. Now let's take another example. If we talk another example, A, B, C, D, E, then F, then these are this is a graph. Now let's give this color as red. If we assign red color to A, now after assigning red color to A, if we go here, B, adjacent vertex, I am going through this path, we can go through this path also. Now B can't be assigned red, so what we will assign it as, let's take an example, green. Now what is adjacent to B, that is F and C. So what we will do, we are going through this path, go to C. Which color we will assign to it, either green? No, because same color of the adjacent, we can assign it as red. Now C के adjacent क्या है, next हमारे पास D. अब इसको हम रेड कलर नहीं दे सकते हैं तो हमने दिया इसको ग्रीन कलर. अब डी के एडजेसेंट क्या है, ई. इसको हम रेड कलर ग्रीन कलर नहीं दे सकते हैं. अब मान लो रेड दे दिया, रेड दे सकते हैं, नो, क्योंकि ई के एडजेसेंट सी भी है. एग्रीड, तो इसको रेड नहीं दिया जा सकता. यहां पे हम स्टक हो गए. क्यों स्टक हुए, क्योंकि E के एडजेसेंट C भी है और E के एडजेसेंट D भी है, जिस वजह से जो C और D के कलर्स थे वो असाइन नहीं किए जा सकते. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करें. यहां पे
यहां रेड दे नहीं सकते थे, ग्रीन दे नहीं पा रहे हैं, तो तीसरा कलर लेके आए ब्लू। तीसरा कलर इसलिए कि जो भी कलर इसको देंगे वो कलर इन दोनों कलर से अलग होना है। एग्रीड। अब इन दोनों कलर से अलग होने के लिए, जैसे मान लो ये रेड था, ये ग्रीन था, यहीं ब्लू दे देते। अगर यहीं पे ब्लू देते तो फिर यहां पहुंचते, यहां पहुंचने के बाद एफ में पहुंचने के बाद ये भी इसके एडजेसेंट है। एफ में पहुंचने के बाद यहां से मेरे पास ग्रीन कलर है बी का, यहां से मेरे पास रेड कलर है, और इसको जब मैं ब्लू दे चुका होता, इसको अगर मैं ब्लू दे चुका होता तो इसके एडजेसेंट देखो, ये ब्लू इधर, ये ग्रीन इधर, ये रेड इधर, तो मेरा चौथा कलर लग रहा होता। एग्रीड। तो मैंने क्या करा, इसको ब्लू ना देके मैंने बैक ट्रैक करा, वो तो मेरा आगे का सॉल्यूशन है। मैंने बैक ट्रैक करा, ग्रीन की जगह यहीं पे ब्लू कर दिया कि भाई मुझे ग्रीन से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब जैसे ही इसको ब्लू करा, ये मेरा यहां पे ग्रीन हो गया। अब जैसे ही ये ग्रीन हुआ तो क्या हुआ, इस नोड का और इस नोड का सेम कलर हो गया ग्रीन, इसका रेड है, तो इसको सिंपली मैं ब्लू असाइन कर सकता हूं। तभी मेरी एडजेसेंट वर्टेक्स के सेम कलर नहीं हो रहे हैं। एग्रीड। एक बार और देख लेते हैं, इसको रेड, इसके ये एडजेसेंट है, मैंने इसको ग्रीन दिया, इसके ये एडजेसेंट है, मैं रेड दे सकता हूं और कोई एडजेसेंट नहीं है। इसके ये एडजेसेंट है और ये एडजेसेंट है। अब अगर मैं इसको ग्रीन दे दे रहा हूं, नोट कट, लेकिन जब मैं यहां पे आया, यहां पे आने के बाद रेड और ग्रीन इसके एडजेसेंट है, यहां मुझे ब्लू देना पड़ेगा। ब्लू अगर मैं यहां दे दूंगा तो फिर इसके एडजेसेंट ये और ये हैं, ये मेरे रेड ग्रीन ब्लू हो जाएंगे, मुझे 4 कलर लगेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे बैक ट्रैक करके इस ग्रीन को मैं ब्लू करूंगा। इसको ब्लू कर दिया, दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन। अब ग्रीन होने के बाद क्या हुआ, दिस इज ग्रीन, दिस इज ग्रीन, दो एडजेसेंट को सेम कलर कर दिया। जैसे ही दो एडजेसेंट का सेम कलर हुआ, दिस इज ग्रीन, दिस इज ग्रीन, दिस इज रेड, दिस इज नाउ ब्लू। So this is one of the solution of graph coloring problem, will take exponential time. Please take a note of this example. This always comes in AQT examination. Now I will discuss about the basic algorithm which we are focusing on. Steps to color graph using backtracking algorithm. Step 1. Confirm whether it is valid to color the vertex with current color by checking whether any of its adjacent vertices are colored with the same color. If yes, then color it or else try with another color. सिंपल क्या है, आपने किसी एक नोड को कलर असाइन करा, उसकी एडजेसेंट वर्टेक्स पे गए, उसको डिफरेंट कलर दिया, और हमें बस यही कोशिश करनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स हमारे लग रहे हों ग्राफ में, जिससे कि हमारा क्रोमेटिक नंबर की वैल्यू कम आए। If no other colors is available, then backtrack. If no other color is available, मतलब एक जगह जाके स्टक हो गए, इधर से रेड, इधर से ग्रीन, और जो नोड है वो उसके एडजेसेंट हैं, दोनों के एडजेसेंट हैं, तो और अब हम कलर दे नहीं सकते, तो हम बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक मतलब बैक ट्रैक करके इस नोड को ग्रीन की जगह हम ब्लू असाइन कर देंगे। दैट इज स्टेप 3rd. आफ्टर ईच कलरिंग, check if all the vertices are colored or not. If yes, then end the program by returning the true, else continue. Now select any one of its uncolored adjacent vertex of the colored vertex and repeat the whole process. This is all about graph coloring algorithm. So what we have to do in graph coloring, we have to assign minimum number of colors to all the vertices of the graph, keeping in mind that no two adjacent vertices will have the same color and its complexity will be exponential. Now I will discuss about Hamiltonian circuit problem. In this, what exactly the problem is? Given a graph G, we have to find the Hamiltonian circuit using a backtracking approach. इसका क्या मतलब है? एक ग्राफ में हमारी जितनी भी वर्टिसेस हैं, उसमें हम किसी एक वर्टेक्स को सोर्स वर्टेक्स बनाएंगे, उस वर्टेक्स से
सारी वर्टेक्स को विजिट करते हुए वापस उसी वर्टेक्स पे आएंगे। अगर वो साइकिल और सर्किट फॉर्म होता है देन इट इज अ हैमिल्टोनियन सर्किट, अदरवाइज नॉट। व्हाट इज द प्रोसीजर? प्लीज सी इट सीरियसली। वी स्टार्ट आवर सर्च फ्रॉम एनी आर्बिट्रेटरी वर्टेक्स एस ए। किसी भी वर्टेक्स से हम शुरू कर सकते हैं। द वर्टेक्स ए बिकम द रूट। जिससे भी शुरू करेंगे उसे रूट बना लेंगे अपने इम्प्लिसिट ट्री की या स्टेट स्पेस सर्च ट्री की। देन द नेक्स्ट एडजेसेंट वर्टेक्स is selected by alphabetical order, alphabetical lexicographical order. If at any stage any arbitrary vertex makes a cycle with any vertex other than vertex A, क्योंकि A से शुरू हुआ है तो पूरी सारी वर्टेक्स कवर करके A पे ही आना है, that will be the solution. अगर कोई भी स्टेज पे कोई भी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स अगर साइकिल बनाती है other than the vertex A, then we say that dead end is reached. Agreed? जहां से हम A से शुरू होके A पे नहीं आ रहे और सारी वर्टेक्स कवर नहीं हो रही हैं तो हम ये कहेंगे डेड एंड आ चुका है। We have to backtrack it one step and again the search begin by selecting another vertex and backtrack the element from the partial solution and must be removed. And this procedure goes on carrying on in the same way. And the search using backtracking is successful if a Hamiltonian cycle is obtained. Agreed? Now, this is the basic example which I will discuss for this. We were given a graph in which there were 6 vertices. Now, how the Hamiltonian circuit problem can be solved using a backtracking approach. सबसे पहले हमने क्या किया? First, we start our search with arbitrary vertex A. This vertex A become the root of the implicit tree. हमने उसको A को root बनाया। अब ये ध्यान रखते चल रहा है बार बार, A को हमने root बनाया तो अपना अगला ऑब्जेक्टिव क्या? A के एडजेसेंट जितनी भी वर्टेक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे और पहले उसको विजिट करेंगे जो अल्फाबेटिकल या लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में पहले अकर कर रही है। तो वी आर डीलिंग विद अल्फाबेटिकल। तो ए के एडजेसेंट क्या हैं? बी, सी, डी। तो हमने ए को रूट बनाया और इसके एडजेसेंट बी, सी एंड डी। नेक्स्ट वी चूज अ वर्टेक्स बी एडजेसेंट टू ए एज इट कम्स फर्स्ट इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। एग्रीड? मतलब हमने क्या किया अभी तक? हमने एक वर्टेक्स ली ए, उस वर्टेक्स से किसी भी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स से हम शुरू कर सकते थे। हमने वर्टेक्स ए को हमने रूट बनाया, उसको रूट बनाने के बाद हमने उसकी सारी एडजेसेंट वर्टेक्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करा। रिप्रेजेंट करने के बाद हम उसमें उसको पहले ट्रेवर्स करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले अकर कर रहा है। मतलब ये करेंगे सी और डी भी, but we will go through this approach. After selecting B, now what our objective is? What are the adjacent to B? Adjacent to B are A, C and E. So what we will say that adjacent to B are A, C, E, but A is already been visited, so we will now visit C and E. Agreed? So next we select C adjacent to B. अब हमने क्या किया? पहले A के adjacent B, C, D उठाए, उनमें कोई भी विजिट नहीं किया था अभी तक। B के एडजेसेंट A, C, E था, A ऑलरेडी विजिटेड था। अगर मैं A को पिक कर लेता तो मेरी एक साइकिल बन जाती A, B, A की विदाउट कवरिंग ऑल द वर्टेक्स। दैट इज नॉट अ हैमिल्टोनियन साइकिल। एग्रीड? वी हैव टू कवर ऑल द वर्टेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 comes back to 1 reaching all the vertices. So we take it as C and E. Now we will see adjacent to C.
Now adjacent to C is what? A, B, D and E. Now adjacent to C is A. What we are doing here is this: A, B, D, E. C के एडजेसेंट क्या क्या थे? A, B, D, E. But A and B are already visited and D and E are the new nodes, so we have to check them. This should be the explanation which I am speaking. This is the explanation for each image. अब जब हमने C पे यहां पे D और E नोट डाउन करा, अब हम क्या देख रहे होंगे? D के एडजेसेंट. अब D के एडजेसेंट क्या है हमारे पास? D के एडजेसेंट हमारे पास हैं सिंपल A, C, E, F. A, C, E and F. Now what will happen? A and C are already visited. So what we will do? We will go for what? E and F, that is this. तो A से B आए, B से C, C से D, then next we select E adjacent to D. अब जैसे ही हम E सेलेक्ट करते हैं, ये प्लीज यहां ध्यान रखना है, जैसे ही हमने E सेलेक्ट करा, अब E के एडजेसेंट देख लेते हैं. E के एडजेसेंट क्या क्या हैं? E के एडजेसेंट हैं B, C, D and F. B, C, D and F are the adjacent to E. तो if we talk about the adjacent to E, B, C, D and F, तो B, C, D are already visited. Now if we go with F, next we select F adjacent to E. अब हम यहां से इतना होने के बाद हमने F को सेलेक्ट करा. अब F को सेलेक्ट करेंगे तो F के एडजेसेंट क्या हैं? F के एडजेसेंट हैं सिर्फ D एंड E, और F के एडजेसेंट जो D एंड E हैं वो आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, मतलब F से वापस A पे नहीं पहुंच रहे हैं. दिस इज द एक्सट्रीम लेफ्ट, A, B, C, D, E, F. F से वापस A पे नहीं पहुंचा जा रहा है, इसका मतलब यहां पे एक डेड एंड आ गया है और अब हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा कि यहां से हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. तभी हमने लिखा द वर्टेक्स एडजेसेंट टू F is D and E, but they have already been visited, thus we get the dead end and we have to backtrack one step and remove the vertex F from the partial solution. अब हम F को रिमूव करेंगे. F को रिमूव करेंगे तो हम E के दूसरे सॉल्यूशंस पे बात करेंगे. अब जब E के सॉल्यूशंस हैं तो F को रिमूव करना मतलब E पे भी डेड एंड, क्योंकि E से हमारे पास क्या था? E मतलब हमारे पास क्या था? E मतलब B, C, D, F. तो E मतलब B, C, D, F था, तो हमने E से F पे गए थे. B, C, D हमने ऑलरेडी विजिट नहीं करा था, तो हमें इसे वापस बैक ट्रैक करना पड़ेगा. E मतलब क्या था? B, C, D, F. F पे डेड एंड है ही, B, C, D को हम विजिट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी विजिट है इस पाथ में, तो हम इनके थ्रू वापस A पे नहीं पहुंच पा रहे, मतलब यहां पे सब पे डेड एंड, मतलब F पे भी डेड एंड, E पे भी डेड एंड. ठीक है, अब F और E पे डेड एंड आ गया. अब हम पहुंचे वापस D पे. D के थ्रू हमारे पास क्या है? E एंड F. तो हम इसके आगे वाले पाथ को तो डेड एंड बता ही चुके हैं, तो D के थ्रू E और F था. अब हम F को ट्रेवर्स कर लेते हैं. F से क्या आया था हमारे पास? D एंड E. तो D एंड E में क्या है? E इज अ डेड एंड. एंड D में क्या है? D से क्या जनरेट होगा? फिर से वही चीज आ रही होगी, E एंड F, फिर से डेड एंड. तो हम यहां से कह देंगे कि यहां पे भी हमारा डेड एंड. मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों. E डेड एंड मुझे पता है, F डेड एंड मुझे पता है. अब बात आती है E और F का डेड एंड होने के बाद D कैसे डेड एंड है. D से हम गए E पे और F पे. E यहां डेड एंड था, F पे आए. F के एडजेसेंट क्या है? D और E. D तो ऑलरेडी विजिटेड है,
तो ई पे तो डेड एंड आ ही रहा है, तो हमें इसे बैक ट्रैक करना पड़ेगा सी पे। तो हमें यह समझ में आ गया कि इस वाले पाथ में डी, ई और एफ आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेड एंड की तरफ। मतलब यहां पे हम स्टक हो रहे हैं और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब हम क्या देखेंगे, सी वाला पार्ट। जब हम सी पे पहुंचे तो डी पे हमने यहां डेड एंड लिख दिया। जब हम सी पे पहुंचे तो सी से क्या एडजेसेंट था, डी और ई। डी पे डेड एंड है, ई बचा। ई के एडजेसेंट क्या है, एफ और डी। ठीक है, एफ एंड डी, और डी के थ्रू हमने जो भी ट्रेवर्स करा था वो डेड एंड था ही, डेड एंड। एफ को एक बार चेक करें तो एफ क्या निकल के आया, डी एंड ई। एग्रीड। अब एफ से निकल के आया डी एंड ई, और ई इज ऑलरेडी विजिटेड, ऑलरेडी विजिटेड। अब एफ पे डी पे गए, डी के एडजेसेंट क्या क्या थे, डी के एडजेसेंट अगर देखें तो डी के एडजेसेंट है हमारे ए, सी, ई, एफ। अब डी के एडजेसेंट हमारे निकल के आए ए, सी, ई, एफ। ए, सी यहां है, ई यहां है, एफ यहां है, तो हमने सिंपल ए लिखा। तो हमारा जो पाथ आया वो क्या, ए से बी, बी से सी, सी से डी जा रहा हूं तो डेड एंड है। मैं डी से ई भी गया, ई से एफ भी गया, डी ई एफ वाला पाथ डेड एंड। अब सी से आगे इधर ई पे, सी से पहले, सी के बाद अगर डी विजिट कर रहे हैं तो डेड एंड आ रहा है। सी से पहले, सी के बाद हमने ई विजिट करा। ई के एडजेसेंट क्या थे, डी और एफ। डी तो ऑलरेडी डेड एंड है, एफ पे चले गए। एफ से क्या जनरेट हो रहा है, डी एंड ई। तो डी एंड ई तो डेड एंड है, डी पे गए, और डी से वापस हम ए पे चले गए। तो ये एक मुझे पाथ मिल गया हैमिल्टोनियन सर्किट का, दैट इज ए, बी, सी, ई, एफ, डी, ए। This is the solution. A, B, C, E, F, D, A. This is the Hamiltonian circuit. This is the Hamiltonian circuit, which means that किसी भी वर्टेक्स से शुरू करके सारी वर्टेक्स कवर करते हुए हम वापस उसी वर्टेक्स पे आ जाएं. This means that this is a circuit. Agreed? So hope you all have understand this example, and I will show you how this happens. This is a base summary from backtracking. The vertex adjacent to E is BCD, and from which vertex F has already been checked and BCD has already been visited, so we have to again backtrack. तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, F तो backtrack करा ही था, फिर E backtrack करा, फिर D backtrack करा, फिर हम सी पे पहुंचे थे. अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट. नाउ द वर्टेक्स एडजेसेंट टू डी आर ई एंड एफ, फ्रॉम विच ई हैज ऑलरेडी बीन चेक्ड, एंड एडजेसेंट ऑफ एफ आर डी एंड ई. इफ ई वर्टेक्स रिविजिटेड देन वी गेट अ डेड स्टेट, सो वी अगेन हैव टू बैक ट्रैक वन स्टेप. तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वो सारा मैंने यहां पे पेन डाउन करा. ये आपको लिखना है एट ईच स्टेप. आफ्टर परफॉर्मिंग ईच स्टेप वी हैव टू राइट दिस. Now, adjacent to C is E, and adjacent to E is F, and adjacent to F is D, and adjacent to D is A. कौन सी बात हो रही है यहाँ पे? This. C is E, E is F, F is D, D is A. We are talking about this adjacency here in this statement. Here we get an Hamiltonian cycle as all the vertices other than the start vertex A is visited only once. Agreed? Start vertex को छोड़ के सारी vertex एक ही बार विजिट होंगी. This is what the Hamiltonian circuit. Hope you all have understand the graph coloring problem as well as the Hamiltonian circuit problem. I have discussed the examples of graph coloring as well as Hamiltonian circuit that comes in the EKTU examination. Please go through that. And I have also discussed about the approach or the algorithm of backtracking for both the graph coloring as well as the Hamiltonian circuit. Hope you all have understand this lecture. Thank you everyone.